Good morning, students. In 202, DC 202, we have already gone through The Merchant of Venice, which is a play written by William Shakespeare. Some of the important questions I have discussed with you, like character sketches of almost all the characters we have discussed. We have discussed the title of the play. Why is the title of the play is The Merchant of Venice? Because it focuses on Antonio, who is real merchant of Venice, and the Jews. जो Shylock है, he is a very shrewd person and he is anti-Christian also. Whatsoever he does, it is not good for anyone. And hero और जो central character है, he is the Merchant of Venice. Who is he? He is Antonio. Then I've discussed with you, various casket scene is there, ring scene is there, your signing of a bond is there. ये सारी जो है चीज़ें they are very important. Opening scene ever remains very important because it introduces us to almost all the characters in this very play. Opening scene it starts with the conversation of various characters, जिसमें हमें ये पता चलता है कि Antonio is there, Bassanio is there, both of them they are very good friends, and Antonio agrees to take each and every risk for his friend, and Bassanio is shown as a lover only. ठीक है, और बाकी ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं लगता बेसिनियो के बारे में. एंड एंटोनियो इज़ दैट वेरी पर्सन हु अग्रीज टू साइन अ बॉन्ड इवन फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंड. तो आपका ओपनिंग सीन क्यों इंपॉर्टेंट रहता है? बिकॉज हेयर वी कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मेजर और माइनर कैरेक्टर्स. हमें उनकी साइकोलॉजी पता चलती है, हमें उनकी वे ऑफ थिंकिंग पता चलता है, वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव कैरेक्टर्स. एंडिंग इज वाइज इज इट इम्पॉर्टेंट? अगेन वी आर इंट्रोड्यूस टू ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स दे आर टेकन टुगेदर. सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे जो है इकट्ठे हो जाते हैं. Then if we come to the concept of which is vital concept जो है, what is it is a plot. जो है what is a plot, it ever remains very important. Plot is in a dramatic work or narrative work is constituted by actions और events. अलग अलग actions और events को इकट्ठा करके plot बनाया जाता है. So in the Merchant of Venice plot is amazingly good because each and everything is shown in the best possible way. Merchant of Venice में हर चीज़ को best possible way में जो है वो डिपिक्ट किया गया है. And characters are amazingly good, like characters they play their role. अब आपको जो है वो suppose मैं आपको example देती हूँ कि there is one person, what does he is basically the person is a doctor, but he is prepared to play the role of Antonio. चलो एंटोनियो का कर लेते हैं. सो हिज बिहेवियर शुड नॉट बी लाइक दैट ऑफ अ डॉक्टर. हर चीज़ से उसकी एंटोनियो रिफ्लेक्ट होना चाहिए. उसकी डिवोशन टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, डेडिकेशन टुवर्ड्स फ्रेंडशिप, एटीट्यूड टुवर्ड्स शाइलॉक, एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, सारी की सारी चीज़ें जो है कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल एंटोनियो की तरह होनी चाहिए. तब हमारा जो है वो जो कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर है वो पूरा होता है. देन प्लॉट में क्या होता है? इवेंट्स आर देयर, दे आर क्लब टुगेदर. सो दिस वेरी प्ले इज़ अ रोमांटिक कॉमेडी. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था. एलिमेंट ऑफ रोमांस इज़ देयर. नेरिसा ग्रेशियानो, लोरेंजो जेसिका एंड पोर्शिया एंड बेसिनियो. ठीक है, कॉमेडी है, कॉमिक एलिमेंट्स आर देयर. सर्टन, जैसे आप लेंसलॉट गॉबो का देखोगे, सर्टन ऑफ द यू विल सी सर्टन अदर कैरेक्टर्स, द वे दे बिहेव, इट इज़ लाइक, सो इट शोज व्हाट दे आर बेसिकली बिहेविंग इन अ कॉमिक वे. स्लाइट्स लाफ्टर रहता है. कॉमिक डजंट मीन लाइक इट वुड अराउज दैट मच ऑफ लाफ्टर कि हंस हंस की जो बुरी हालत हो जाएगी. इट इज़ लाइक गिविंग अ वेरी गुड फील, अच्छा सा फील हमें आता है. दैट इज़ called comic. So basically element of romance is there, element of comedy is there, which is not serious. हमें कभी बड़ा सीरियस सा फील ही नहीं होता जब वी गो थ्रू बॉन्ड स्टोरी इज़ देयर. वी फील अ बिट कि व्हाट वुड हैपन नाउ. देन वी कम टू नो व्हेन पोर्शिया लीव्स एज अ लॉयर, we feel like something good is going to take place. Even before going through the play हमें ये लगता है कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है. when she speaks in front of Antonio and everything goes in favor of hers, it's a very positive thing, and the play ends very happily. Certain terms are there which are very important. who is the central character or hero or the protagonist, जिसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है. so in this very play Merchant of Venice, central character is who is a protagonist, who is a hero, who is a central character is Antonio. उसके चारों तरफ स्टोरी घूमती है. बिकॉज उसी की वजह से प्ले शुरू हुआ. बिकॉज ऑफ हिम बॉन्ड सीन वॉज देयर विच इज़ द सेंट्रल कोर और सोल ऑफ द प्ले इज बॉन्ड सीन विच एंड्स एट लास्ट इट इज़ टेकन, इट एंड्स
at last, ठीक है, because of Antonio. Bassanio is there because of Antonio. He goes to meet Portia. So Antonio is the main character. अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, who is the central character, write down a character sketch of that very person और write down character sketch of the Antonio, तो आपने इस चीज़ को जो है वो कवर अप इस तरह से करना है. देन प्रोटेगोनिस्ट के बाद आ जाता है एक एंटागोनिस्ट होता है, who is a negative character, who is opposite to प्रोटेगोनिस्ट. तो एंटागोनिस्ट या ऑपोजिट कैरेक्टर वो आ जाएगा. और उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट. व्हाट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट इज़ लाइक इफ़ समथिंग इज़ गोइंग ऑन इन माई माइंड, वेदर आई शुड डू दिस, आई शुडंट डू दिस, करना है नहीं करना है. एक एग्जाम्पल कोट करती हूँ जो मैं इन जनरल आपके साथ भी मैनी टाइम्स आई हैव शेयर्ड इट विद यू. लाइक your cousin's marriage is there, or your friend, very close friend's marriage is taking place tomorrow is your exam too. So what you will have to do, tonight you'll have to go to that very place. So practically if you think you shouldn't be there, क्योंकि एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको लगता है कि आपका दिल थोड़ा बेईमान हो जाता है. इट फील्स लाइक कि नहीं, थोड़ी देर जाते हैं. सो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इनसाइड यू. जाना है नहीं जाना, जाना तो कितनी देर जाना है, कल एग्ज़ाम का क्या होगा. इफ़ यू टेक वन वे आप डिसीजन लेते हो, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे अपने प्रिपरेशन करनी है या मुझे जाना है, तो एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम दे लेंगे. सो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया. लेकिन अगर आपके कॉन्फ्लिक्ट वो चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो और बाहर भी वैसे ही डिस्टर्बेंस चल रही है, तो क्या हो गया, इनर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ गोइंग इनसाइड एंड आउटर कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ गोइंग आउटसाइड. ठीक है. अगर आपने ढंग से कई मूवीज़ देखी होंगी, प्लेस देखी होंगी, या फिर आपने जो सीरियल्स देखे होंगे, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज शोन, आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जब दिखाया जाता है ना, तो व्हाट इज़ इट, आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑल्सो शोन. नेचुरल फोर्सेस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, बाहर तूफान, आंधी, बारिश, लाइटनिंग, थंडरिंग, एवरीथिंग इज़ डिपिक्टेड इन दैट वे. सो व्हाट इज़ इट इज़ आउटर कॉन्फ्लिक्ट. अब जो मेरे अंदर चल रहा है, मुझे नेचर वैसे ही दिख रही है. एट टाइम्स आई जस्ट शेयर इट विद यू कि इफ़ ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स आर ऑन टिप्स ऑफ ग्रास, यू आर वेरी हैप्पी, यू फील लाइक नेचर इज स्माइलिंग विद मी, नेचर इज़ वेरी हैप्पी, स्कैटरिंग 7 कलर्स, है ना, इंद्रधनुषी रंग फैले. बट इफ़ your mood is not good, what would happen? Nature is crying, nature is like weeping with me, dew drops on grass, they are looking like tears. पहले pearls थे, अब tears हो गए. आपका attitude है. In journal it is said, it is your attitude which makes heaven out of hell and hell out of heaven. journal life में भी यही अप्लाई होता है, जो हम सोचते हैं वही चीज़ वो दिखती है. तो कॉन्फ्लिक्ट इज जो मेरे अंदर चल रहा है, करूँ ना करूँ, करूँ तो कितना करूँ, ना करूँ तो क्यों ना करूँ, अगर कर लिया तो क्या फर्दर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, नहीं करूँगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. दिस इज़ व्हाट वी कॉल कॉन्फ्लिक्ट. देन इट इज़ clear to you now, conflict is clear to you. Soliloquy I have discussed with you. Soliloquies are there in the play, we will discuss them in detail when we will go through important reading comprehension. जब हम लोग करेंगे, I'll explain each and everything in detail. अभी तो I have just shared summary with you, but summary is good enough to frame question answers. question answers में आपका सारे का सारा वो कवर हो रहा है जो मैंने आपसे शेयर किया है. Then surprise is there. What is a surprise? When Portia and Nerissa, they reveal their identity, that they had been as Portia had been as a lawyer to the Duke of Venice. That was a great surprise for both of them, Gratiano and Bassanio, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था वो कौन थे, वो लॉयर कौन था, उसका क्लर्क कौन था. So these things they enhance the impact of a comedy or a play. छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें एक बोलते हैं ना, वी कॉल, जैसे स्पाइसी बन जाती है चीज़. इट इज़ लाइक दैट. देन यूनिटी ऑफ एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, रामलीला का हम एग्जांपल लेंगे. रामलीला आप लोगों को पता ही होगा, नवरात्रि आ रही है तो रामलीला स्टेज की जाती है. उसमें क्या होता है, इफ़ वन सीन इज़ लेड इन द पैलेस ऑफ दशरथ एंड अदर वन इज़ इन द फॉरेस्ट. जैसे राम और लक्ष्मण के हंटिंग का सीन है, फॉरेस्ट में है, और एक दशरथ के पैलेस में है. तो जो पैलेस वाला सेटअप होगा ना, पहले वो रहेगा स्टेज पे, फिर पर्दा गिरेगा, फिर हम जो है जंगल वाला सेटअप लाएंगे, करेंगे क्या, पीछे से जो है वो कर्टन चेंज करेंगे और सेटिंग चेंज करेंगे स्टेज की. बट इट टेक्स टाइम. प्ले में हमारे पास इस तरह नहीं होता. जैसे आप मूवी देखते हो, सम ऑफ द सीन्स दे आर शॉट अब्रॉड. सम ऑफ द सीन्स जो उनकी शूटिंग कहाँ है, HP में हुई है, कुछ की दिल्ली में हुई है, कुछ की मुंबई के होटल्स में हुई है. लेकिन जब हम एज अ होल देखते हैं तो वो कंप्लीट दिखता है हमें. दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन. हमें कहीं इरेगुलरिटी या लूप होल नहीं दिखता. दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी ऑफ एक्शन. सो यूनिफाइड जो प्लॉट है, उसमें क्या होगा, सीरीज ऑफ एपिसोड्स विच आर woven together.
जैसे एक थ्रेड में अलग अलग बीड्स डाले जाते हैं, माला बन जाती है, सेम इज़ द यूनिटी ऑफ एक्शन। हर चीज़ को प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल यूनिटी ऑफ एक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्ले में लूप होल होंगे तो हम तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर हम एलिजाबेथन थिएटर की बात करें तो द थिंग्स वर डिफरेंट। मैंने आपको एडवेंट और अराइवल ऑफ ड्रामा बताया था, किस तरह से पहले चर्च यार्ड, फिर चर्च यार्ड के बाद वैगन्स पे गए थे, उसके बाद एलिजाबेथन थिएटर की बात आती है। तो दैट वाज समथिंग डिफरेंट एंड पीपल दे एंजॉयड। वो एंजॉय भी करते थे ना, उनके पास कोई सोर्स नहीं था। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ योर केयर्स एंड वरीज, दे वांटेड टू बी रिलैक्स। तो उस तरह से एंजॉय करते थे। हम लोगों के पास किस तरह का, हमारे पास टेलीविजन है, वेरियस चैनल्स आर देयर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट आर देयर। तो हम लोग उस तरह से अपने आप को रिलैक्स करते हैं, बट यूनिटी ऑफ एक्शन एवर रिमेन्स द सेम। सो डबल प्लॉट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। व्हाट इज़ अ डबल प्लॉट? मैंने आपसे पहले भी बात की है कि सब प्लॉट और मेन प्लॉट जो है वो पैरेलल चलते हैं। जैसे कि आप मूवीज़ में देखते हो तो क्या होता है, मेन प्लॉट में अ मेल एंड फीमेल आर देयर, दे आर हीरो एंड हीरोइन, अल्टीमेटली दे फॉल इन लव, दे स्ट्रगल एंड अल्टीमेटली इफ़ बाई चांस डेथ इज़ देयर, बोथ ऑफ देम दे डाई। तो जो सब प्लॉट में उनके जो फ्रेंड्स हैं जिनका अफेयर चल रहा था वो भी नहीं मिल पाते हैं। इवन इफ़ दे वोंट बी डेड, दे विल बी डिटैच्ड। जैसे आपकी ट्रू लवर्स पे बेस्ड स्टोरीज़ हैं, जैसे शीरी फरहाद है, लैला मजनू है, एंड रोमियो जूलियट की जो स्टोरी है, एंडिंग में नो यूनियन इज़ देयर। तो यूनियन जो है वो ट्रेजिक एंडिंग है बेसिकली उसकी। तो वो यूनियन जो है वो जो उनके फ्रेंड्स हैं क्लोज, उनकी भी नहीं हो पाती जब सब प्लॉट में है। लेकिन अगर हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात करें, हेयर द मेन प्लॉट कंसिस्ट्स ऑफ एंटोनियो, बेसिनियो एंड पोर्शिया। उनके साथ लिंक्ड कौन है? उनके साथ जो लिंक्ड है, नेरिसा इज़ देयर विद क्रिस्टियानो, देन शाइलॉक की जो डॉटर है जेसिका इज़ देयर विद लोरेंजो। तो वो दे आर लिंक्ड टुगेदर। व्हेन बेसिनियो एंड पोर्शिया गेट मैरिड, देन नेरिसा एंड क्रिस्टियानो ऑल्सो गेट मैरिड। सिर्फ जो इकट्ठे जो कंसेप्ट दिखाया गया है दैट इज़ ऑफ ग्रेशियानो एंड योर जेसिका, दे उनका जहाँ पे रेफरेंस आता है तो हम लोगों को वो धीरे 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 यूनियन की तरफ वो बढ़ते हुए दिखते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेन प्लॉट एंड सब प्लॉट। पैरेलल ग्रोथ होती है, जिस डायरेक्शन में मेन प्लॉट जाएगा सब भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेन प्लॉट के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर यूनाइटेड और सब प्लॉट वाले दे गेट सेपरेटेड। दे आर शोन मूविंग टुवर्ड्स यूनियन और दे आर यूनाइटेड इक्वली। तो आपका ये मेन और सब प्लॉट जो है वो इकट्ठे चलता है। दैट गिव्स द रियल डेवलपमेंट टू द प्लॉट। इसमें इस तरह से रहेगा। उस तरह से आपके प्ले में बिगिनिंग, मिडल और एंडिंग रहता है। बिगिनिंग इज कंपेयर्ड विद द हेड, मिडल इज विद द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एंडिंग इज कंपेयर्ड विद द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। मिडल पार्ट जो है वो लंबा रहता है। बिगिनिंग में सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, एंडिंग में भी लगभग सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे आते हैं। और मिडल पार्ट में जो है वो डिवेलपमेंट रियल वे में होती है, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट अलग अलग तरह से जो है वो दिखाई जाती है। देन वी टॉक अबाउट फ्लैशबैक। व्हाट इज़ अ फ्लैशबैक? व्हेन वी थिंक ऑफ आवर प्रीवियस डेज। आपने कई मूवीज़ देखी होंगी जिनमें पीपल दे थिंक ऑफ देयर प्रीवियस डेज, व्हाट्स एवर इज़ ओवर। पास्ट के बारे में वो सोचते हैं, तो वो क्या है? दैट इज़ कॉल्ड फ्लैशबैक। या इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। नॉवेल्स के कंटेक्स्ट में हम लोग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स का यूज़ करते हैं। तो जो यादें हैं, सपोज़ आप क्लास में बैठे हो, सडनली यू थिंक ऑफ कि व्हेन आई वाज इन थर्ड तो मैंने ये शरारत की थी, इस तरह से मेरे पेरेंट्स का बिहेवियर था। दैट इज़ व्हाट वी कॉल फ्लैशबैक। तो नॉवल प्लेज में कई बार वो चीज़ें भी रहती हैं। एंड देन आई विल डिस्कस विद यू लिटिल बिट ऑफ कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी है, लेकिन थोड़ा सा मैं डिस्कस ज़रूर करूँगी। इट इज़ योर गुस्ताव्स पिरामिड जो है वो है। इसमें क्या होता है? बिगिनिंग ऑफ द प्ले इज़ कॉल्ड राइजिंग एक्शन। देन राइजिंग एक्शन में इट इज़ ओपनिंग सीन आएगा। देन स्लोली स्टेडली व्हाट हैपन्स, राइजिंग एक्शन जो है क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, ऊपर जाके रुक जाएगा। देन दे हैव टू डिसाइड कि किस तरफ अब बात जाएगी। क्लाइमेक्स में फिर आता है क्राइसिस और रिवर्सल और टर्निंग पॉइंट। वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पे सेंट्रल मेन कैरेक्टर या हीरो या प्रोटैगनिस्ट को एक डिसीजन लेना होता है जो या तो फ़ायदे वाला होगा या नुकसान वाला होगा। ठीक है, उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन। फिर वो मूवमेंट जो है एक्शन की वो डाउन चली जाएगी। देन कैटास्ट्रॉफी और आउटकम इज रीच्ड। आउटकम क्या होता है? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट क्या रहेगा? ट्रेजिडी में तो ऑब्वियस एंड रिजल्ट जो है वो डेथ्स का ही रहता है, विच रियली टचेज अस। ट्रेजिडी में क्या होता है? जनरली एक सेंट्रल कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें हमेशा उसमें जो है एक वीकनेस रहती है। उस वीकनेस को वो भूल जाता है। बागवा मूवी अगर आपने देखी होगी तो यू विल कम टू नो
पेरेंट्स वर देयर, सेंट्रल कैरेक्टर जो मेल है वो क्या करता है, ही गिव्स ईच एंड एवरीथिंग टू हिज चिल्ड्रन। वो भूल जाता है कि बेसिकली उसकी वीकनेस क्या है, उसकी वीकनेस है लव फॉर हिज चिल्ड्रन। वो इंसान ये भूल जाता है कि इफ़ आई गिव ईच एंड एवरीथिंग टू माई चिल्ड्रन, कि मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, उस तरह से एक किंगली ट्रेजिडी है। सेम इज़ द केस विद द किंग, ही गिव्स ईच एंड एवरीथिंग टू हिज डॉटर्स। जो सिंसियर डॉटर है उसको कुछ नहीं देता है, लास्ट में वही डॉटर उसके काम आती है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल ट्रेजिडी, एंड लास्ट दैट वेरी किंग ऑल्सो डाइज। सो ट्रेजिडी की एंडिंग ट्रेजिक होती है, जहाँ पे गुड पीपल दे सफ़र, पॉजिटिव कैरेक्टर्स दे सफ़र, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेजिडी। एंड देन hamartia is a term which is used, that is what we call hamartia is a weakness or cause of downfall, जो कैरेक्टर में रहता है, उसके कैरेक्टर की जो कमी है, that is what we call hamartia. And these were certain points which I felt like they were very important to discuss with you. उसके बाद है आपका इन जनरल अगर हम डिस्कस करें, देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट प्लॉट, वी डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ सब प्लॉट, टाइटल भी आप डिस्कस्ड। देन रिंग सीन इज़ देयर, ठीक है, रिंग एपिसोड इज़ देयर, कैस्केट एपिसोड इज़ देयर, बॉन्ड, साइनिंग ऑफ द बॉन्ड और बॉन्ड एपिसोड इज़ देयर। वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स, एंटोनियो, बेसिनियो, देन पोर्शिया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शाइलॉक, ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ता है पोर्शिया और जेसिका के बीच में, तो कंपैरिजन भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि पोर्शिया जो है वो एंटी क्रिश्चियन नहीं है, बट जेसिका जो है शी इज़ बॉर्न इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, शी इज़ ब्रॉट अप, शी इज़ नर्चर्ड इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, उसका ब्रॉटअप अलग रहता है। डिस्पाइट दैट शी प्रेफर्स टू बी विद अ क्रिश्चियन हु इज़ हैविंग इन सर्टन वैल्यूज़, ही वांट्स टू बी विद सर्टन वैल्यूज़। अगर आपको एंटोनियो बेसिनियो का बाई चांस आ जाता है, आपको करना पड़ता है, शॉर्ट क्वेश्चन में वो पड़ेगा, तो यू शुड बी एबल टू डू, बिकॉज बेसिनियो इज शोन एज अ लवर ओनली, उसको एज अ बिजनेसमैन कहीं पे भी नहीं दिखाया, वी डोंट नो व्हाट डज ही डू एक्चुअली। एंड एंटोनियो इज शोन एज वेरी गुड बिजनेसमैन, ही वांट्स टू बी वेरी सक्सेसफुल, हैज स्ट्रगल इन लाइफ, एंड ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑल्सो, ही टेक्स हिज, ही रिस्क्स हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज फ्रेंडशिप। लास्ट में वो कंप्लेंट नहीं करता, ही नेवर सेज इवन ए सिंगल वर्ड अगेंस्ट हिज फ्रेंड व्हेन ही सर्वाइव्स एंड ही इज़ विद हिज फ्रेंड नाउ। सो नेरिसा का कैरेक्टर अगर आ जाता है आपको, यू शुड बी एबल टू राइट हु इज शी बेसिकली, एंड नेरिसा और क्रिश्चियानो का तो स्टोरीज पैरेलल चल रही है ना, जिस तरह से आपकी पोर्शिया और बेसिनियो की स्टोरी चल रही है, नेरिसा क्रिश्चियानो की बिल्कुल पैरेलल चल रही है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, यू विल बी एबल टू गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको समरी क्लियर है, आपका बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन चेंज होता है। मान लो सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आपने लिखना है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऊपर आएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग आपकी समरी आएगी, मेन फोकस एंटोनियो पे रहेगा। अगर आपने लव थीम्स के ऊपर लिखना है, जो थीम ऑफ लव है इसमें, तो आपने बिगिनिंग डालनी है, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स के बारे में आप 8-10 लाइन्स लिख के नीचे आप 3 अलग अलग पैराग्राफ बना के फिर कंक्लूड करोगे। अगर आपको कैस्केट सीन के बारे में लिखना है, तो यू विल स्टार्ट विद पोर्शिया एंड बेसिनियो पे शिफ्ट करोगे, फिर पोर्शिया के सूटर्स पे शिफ्ट करके नीचे तक आओगे। लेकिन कैस्केट सीन में आप क्या करोगे, आप उन लाइन्स को कोट करोगे एज इट इज़, डायरेक्ट स्टेटमेंट उठानी है, शेक्सपियरियन स्टेटमेंट, व्हाट्स एवर वाज रिटन ऑन कैस्केट, कैस्केट पे क्या लिखा गया था, उसके अंदर क्या क्या था, गोल्ड, सिल्वर और जो लेड कैस्केट था उसके अंदर क्या क्या था, तीनों में बताया गया क्या निकलता है उनमें से। एक में से स्कल निकलता है, पोर्शिया की फ़ोटो निकलती है, एक में से एक और जो पिक्चर है वो निकलती है। द इंस्क्रिप्शन व्हाट्स एवर वॉज रिटन देयर, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। रिंग एपिसोड आई हैव टोल्ड यू, बॉन्ड साइनिंग का शुरू से शुरू होता है, जहाँ से हमारा प्ले शुरू हो रहा है वो लास्ट तक जाता है, तो आपने वो उस तरह से कवर करना है, साइनिंग ऑफ द बॉन्ड। थीम ऑफ रिवेंज इज़ देयर, कहाँ जाएगा थीम ऑफ रिवेंज, एंटोनियो और जू के बीच में शाइलॉक एंटोनियो रिलेशनशिप चलेगा इसमें सारे का सारा थीम ऑफ रिवेंज में। देयर उस पॉइंट पे आके जो है वो जेसिका ऑल्सो फील्स कि माई फादर इज़ नॉट डूइंग राइट, मेरे फादर जो है बहुत डिच करते हैं लोगों को, बहुत पैसा लेते हैं लोगों से, शी फील्स अनकम्फर्टेबल विद हिम, शी स्टील्स हिज मनी, शी एन्जॉयज विद हर लवर। और इसमें एक एलोपमेंट वर्ड यूज़ करना है, वो करना ही करना है, वोंट लीव दिस वर्ड। Elopement itself means that running out for the purpose of marriage. इंडिविजुअल कैरेक्टर का आता है, यू शुड बी एबल टू राइट डाउन। जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है, 2 वीडियोज़ में आपको सेंड कर रही हूँ, और कितने लार्ज नंबर ऑफ वीडियोज़ आई हैव सेंड रिलेटेड टू योर समरी ऑफ द प्ले, यू शुड बी एबल टू राइट डाउन द कैरेक्टर्स। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किस तरह का वो कैरेक्टर है। लैंसलॉट गॉबो का आपको आ सकता है शॉर्ट कैरेक्टर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें यू शुड बी एबल टू
गो थ्रू एंड राइट डाउन, अंडरस्टैंड करना है, उसका लिखना है, अपने आप फॉर्म करने की कोशिश करो। और अगर आप हेल्प बुक्स की हेल्प लोगे ना, यू वोंट फाइंड गुड मटेरियल देयर। उसमें जो आपको मटेरियल मिलेगा वो लैंग्वेज थोड़ी टफ रहेगी, ओब्वियसली वो टफ रहेगी, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ पीपल हु आर मास्टर्स और पीएचडी उन्होंने कर रखी है। लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लेके आओ ना, सिंप्लीफाई करो। जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है, जितना मैं आपको ग्रामर का करवा रही हूँ या करवा चुकी हूँ, यू शुड बी एबल टू राइट योर ओन। अपने आप छोटे मीनिंगफुल सेंटेंसेस में लिखो, सिंपल वर्ड्स को यूज़ करो, इस तरह लिखो कि वो आपको भी समझ आ जाए। हाँ, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एज अ कंप्लीट होल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि एंटोनियो के बारे में लिखते लिखते निकल गए ग्रेशियानो के बारे में लिखना शुरू कर दिया। एंटोनियो मीन्स एंटोनियो के बारे में ही लिखना है, आपने उसके ही कैरेक्टर स्केच को डिस्क्राइब करना है। थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो जहाँ से वो को रिलेट हो रहा है उसका, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपको बोला है कि आपने कॉलेज के बारे में लिखना और ज्वालाजी टेम्पल में घुस गए वहाँ लिखने के लिए। ऐसा नहीं होता है। बट यू हैव टू बी यू हैव टू राइट टू द पॉइंट। कंक्लूजन 2 लाइन का लिखना है, ऊपर वाला जो पैराग्राफ लिखे उसी से उठा के कंक्लूड करना है। लिखने की कोशिश करो तभी ये हो पाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लोग क्रैमिंग करोगे, देख लो जितनी हेल्प बुक्स आप ले सकते हो, आपको वो गाइड करेंगी सिर्फ। लेकिन जो अपना आपका मटेरियल होता है ना, व्हाट्सएवर यू राइट योर ओन, वो मटेरियल हमेशा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है और वो हमारे मार्क्स फेच करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि हेल्प बुक से क्रैमिंग होती है और अपनी जो क्रिएटिविटी है दैट इज़ थ्रू योर own, that is actually your own vent of find where you want to write something or your own. So keep on preparing for your examination and keep on preparing your play. Just prepare it in the best possible way. Make it a habit of yours to write down daily something, कुछ ना कुछ लिखो. Good day.